Good morning to my students. So today we will do topic that is topic 2.6 in your NCERT book, that is errors in measurement. Previously we have done two topics very clearly, accuracy and precision, right? Now we will do errors. As we have done in previous video bacha, that accuracy is very important. If you are doing any measurement, then it's very important that you must get maximum accuracy, right? Your answer must be very much accurate, or it must be very close to its true value. But is this feasible in real world? Because of so many reasons, we never get 100% accuracy. It's not possible to achieve 100% accuracy due to some uncertainties, due to some variation, due to some unwanted or wanted reasons. We get some variations in our measurement results, right? So that variation in our measurement result, due to that uncertainty, that variation is called errors, right? We never get 100% accuracy. There is always some percentage, some error included in our measurement, right? Like if I will give you any pen, right, and I will tell, please check its length, right? You will take one measurement, and then I'll say after 5 minutes, or maybe after just after that, I'll say now measure it again, right? You measure it 3 to 4 times. At different times you measure two different measurements. Now maybe you will not get same results, right? Same technique was used, right? Same person was doing, but still you did not get the same results. Right? That is called some variation in result is coming, and that variation due to that uncertainty is called error. Error is not mistake, right? Unlike, don't get confused with mistake. Mistake is different, right? Does not means you got the wrong answer, right? Mistake means you got the wrong answer, but error does not mean you got the wrong answer. Error is just means you did not get as close as to the true value. You did not get the 100% accuracy, right? Your value is not very close to the true value. It is close to the true value, but some uncertainty is there in your measurement. That is called error. So basically we can't remove error in your measurement. Some uncertainty due to some known or unknown factors, some uncertainty is always there, right? You can't achieve 100% accuracy at least every time, right? So basically error hota kya hai? If we will see errors mathematically, we can write error is equals to difference between true value and the measured value, right? Error is basically difference between true value and the measured value. Measured value, as I told you earlier, measured value is value you get from experiment, right? That is measured value, what you measured. So जो ट्रू वैल्यू है, like we took example in our previous video, right? Like if g, that is acceleration due to gravity, is equals to, what is value of acceleration due to gravity? Yes, 9.8 meter per second square, right? 9.8 meter per second square. This is value of g. We know this thing. But if with using the same instruments, using the same precautions, using the same experimental techniques, you are doing the same experiment, but still you got the value, let x जो हमारा measured value है, that is 9.6, right? 9.6 meter per second square, right? g dash हमारा क्या आ गया? This one. So error present is 9.8 is true value. This is our true value, right? And what if we do the experiment, we got this value, that is measured value, right? So we got error is equals to, in this present case, error is equals to true value, that is 9.8, subtract
9.6 from it and you will get 0.2 is our error. Error can be positive और नेगेटिव, राइट. एरर का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चा और नेगेटिव भी हो सकता है. नाउ मेन थिंग इज कि एरर का कॉज क्या है, किस वजह से हमें एरर मिला, राइट. सो एरर के कॉज बच्चे कुछ भी हो सकते हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कॉजेज वी डिवाइड द एरर्स इन डिफरेंट टाइप्स. So basically error is divided in two main types. First is systematic error and second is random error. Right? First is systematic error. Systematic error is further divided into three sections. First is instrumental error. Second is imperfection in experimental technique or procedure. Third is our personal error. First, let's check systematic errors. So systematic errors are all those errors which are due to some instruments, right, that there is some minor defect in instrument, and if you are calibrating something using that instrument, then it's sure you will not get 100% accuracy, right. So sometimes there are very minute errors due to instruments. Next, in systematic error, second is our due to experimental technique. Which technique you are following to perform your experiment, that also matters. Third is personal error, right. So let's check first instrumental error. Instrumental error is due to some manufacturing defect or calibration, right. So जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कैलिब्रेशन डिफेक्ट है. लाइक इफ वी विल टेक एग्जांपल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, राइट. वर्नियर कैलिपर में बेसिकली बच्चा हम क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि जो 0 मार्क है आपका वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर आपका मैच नहीं होता है, कोलाइड नहीं होता है 0, इट मीन्स वी नो दिस थिंग that particular vernier caliper, that particular instrument is surely having some 0 error, right. So before before performing our experiment, we must check is our instrument 100% correct, so that we can achieve 100% accuracy by using the same instrument for our experiment, right. So sometimes in instrument there is some minor manufacturing defect or some calibration defect, right, due to which we will get some error, and that type of error is called instrument error. This is also a part of systematic error. Now next check second part of systematic error, that is imperfection in experimental technique, right. Sometimes what we used to do, we used to perform different experiments with different techniques, right. So it matters that which technique you are using to perform that particular experiment, right. Like let's take example, if you will go to doctor and he'll give you some thermometer, right, random thermometer you are using, and if you are using it under your armpit, then basically the thermometer which is placed under armpits will always show lower temperature, right. So it is always preferred to keep the thermometer in your mouth, right. Doctors always used to give you thermometer in your mouth, right. But if you are doing as we used to do, sometimes we used to check our temperature by placing it under our armpits, right. So that will surely represent the temperature which is lower than the actual temperature which it must show, right. So this is basically due to the experimental technique what you are using, right. So this will surely give you some error in the measured temperature, right. That type of error which is due to wrong technique, that is called our imperfection in experimental technique or procedure, right. Now next is personal error. Personal error is due to many reasons, due to inexperience of the observer who is doing the experiment, right, or it may arise due to such as lack of proper setting of the apparatus. Yes, you have not done the proper setting, right, or otherwise you are not taking proper precautions also, then you will get some error in your experiment, and that type of error is called personal error. This is due to your personal reasons, right. You are not taking care of your experiment apparatus, you are not taking good care of your experiment
technique, right? That type of error is all in a systematic error, right? So this was all about systematic error. Next type of error is random errors. Random errors can occur irregularly in your experiment. It can arise any time by chance, right? So those errors which include it may like your experiment may vary due to some external factors like temperature, volume, velocity, right? So those errors which come into existence called random error, right? और chance error भी बोलते हैं हम, right? Due to variation in temperature, due to experimental conditions, voltage supply में difference हो सकता है, vibration में difference हो सकता है, temperature में, there are so many external factors which may affect your experimental results or measurements, right? So all those errors which are due to these reasons are called chance error or random errors. Now the another type of error which will affect accuracy of your experiment are least count error. As we have done previously, least count of any instrument is the least value, the smallest value which an instrument can measure, right? So error due to that is called least count error. So basically least count errors are associated with the resolution of the instrument. Least count क्या है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको आप किसी भी तरीके से कोई भी डाटा आपका मेजर करते हो, तो जो उसका स्मॉलेस्ट या फिर एक्यूरेट वैल्यू रहता है, समझो, जो एक्यूरेट भी हो और स्मॉलेस्ट वो कितना काउंट कर सकता है वैल्यू को, कौन सी वैल्यू उसकी स्मॉलेस्ट वो एक्यूरेटली काउंट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अ लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, राइट? जैसे कि सन डायल है, वो क्या है? स्केल ऑफ आवर्स. सो लीस्ट काउंट क्या है उसमें? 1 आवर का आपका लीस्ट काउंट है, वो 1 आवर ही मेजर कर सकता है, मिनट्स में वो आपका सन डायल मेजर नहीं कर सकता, राइट? स्टॉप वॉच है आपका, राइट, रेस में, उसका लीस्ट काउंट क्या रहता है आपका? काफ़ी अच्छा रहता है ना? तभी तो हम बिल्कुल प्रिसीज, वो उसका डाटा क्या है? बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है ना? तो वो क्या है आपका? वो आपका स्टॉप वॉच जो है, लीस्ट काउंट उसका क्या है? 100th ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा, जो 100th सेकेंड आपका पार्ट है, उसको भी वो ईजिली मेजर कर सकता है. तो स्टॉप वॉच क्या है आपका? ज़्यादा प्रिसाइज है और उसका लीस्ट काउंट क्या है? काफ़ी कम है, विच इज़ अ गुड थिंग, है ना? जैसे कि मीटर स्केल है, उसका लीस्ट काउंट क्या है बच्चे? 1 mm. वो 1 mm तक ही आपका बिल्कुल एक्यूरेट डाटा को आपको देगा, उसके बाद वो क्या है आपका, उसके लेस देखोगे तो आपका रिजल्ट आप ले ही नहीं सकते हो मीटर स्केल से, है ना? सो 1 mm को मैंने यहाँ पर आपको 0.1 सेंटीमीटर अगर आप कन्वर्जन करो, तो ये भी आपकी डाटा वैल्यूज़ आपको क्या है ध्यान में रखनी है, राइट? उसके बाद क्या है? वर्नियर कैलिपर आपका, उसका लीस्ट काउंट कितना है बच्चा? 0.1 mm, राइट? एंड उसको सेंटीमीटर्स में देखें तो 0.01 सेंटीमीटर आ गया आपका. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज रहता है जो, उसका आपका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर, राइट? तो ये भी आपका क्या आ गया? उसका आपका लीस्ट काउंट है इंस्ट्रूमेंट का. मेजर्ड वैल्यूज आर गुड ओनली अप टू दिस वैल्यू. लीस्ट काउंट जो आपका है, मेज़र जितनी भी आप वैल्यू करोगे, इससे कम आपका, इससे लेस वैल्यू आप मेज़र करने की कोशिश करोगे तो आप उस इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर सकते, राइट? इंस्ट्रूमेंट्स जिनका हाई रेजोल्यूशन रहता है वो हमें चाहिए, राइट? जैसे कि आपका वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, उनका रेजोल्यूशन हाई है, राइट? जितना आपका, एंड इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, बाय इम्प्रूविंग द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी हम क्या करेंगे अपना, आपका जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें मिलेंगे और ज़्यादा प्रिसाइज भी, राइट? सो मीटर स्केल जो है उसके आप रिलाई कर सकते हो सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर तक, क्योंकि लीस्ट आप वहीं तक काउंट कर सकते हो उसके जरिए, है ना? उससे कम आप मेज़र नहीं कर सकते. सो लीस्ट काउंट एरर क्या है बच्चा? जब आप काउंट करते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एरर, जो ऑब्जर्व करते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आप लीस्ट काउंट, तो उसमें जो एरर इंट्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर. इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है या ऑब्जर्वर की वजह से भी हो सकता है ना? डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देख रहे हो, है ना? आप फिजिक्स की जो एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें आपको पता लगेगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है देखने की, उससे भी आपका लीस्ट काउंट एरर चेंज होता है, राइट? या फिर लीस्ट काउंट एरर क्या है? अक्कर होती हैं बोथ सिस्टमेटिक या फिर रैंडम एरर. यस, दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स. तो आपका डिपेंड करेगा. अब जितना ज़्यादा हाई प्रिसीजन होगा उतना कम आपका क्या है उसका लीस्ट काउंट होगा. जैसे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में देखो बच्चा, आपका लीस्ट काउंट कितना है? आपका लीस्ट काउंट है आपका
0.01 mm का, है ना। तो लीस्ट वो इतना मेज़र कर सकता है। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे 0.02 mm मेज़र कर लेगा, है ना। बट उसमें क्या है, हाई प्रिसीजन है। प्रिसीजन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपकी जो मेजरिंग वैल्यू है, जो इंस्ट्रूमेंट से आप मेज़र कर सकते हो, वो आपस में कितनी नज़दीक हैं। तो ऑब्वियसली आपका मीटर स्केल या वर्नियर कैलिपर के कंपैरिजन में आपका जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है वो ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, राइट। सो इनका रेशियो क्या रहता है बच्चा, रिवर्स रहता है। लीस्ट काउंट एंड प्रिसीजन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको नोट्स में आपको बताया है, मीटर स्केल का क्या है, लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो उसका प्रिसीजन कम है। वर्नियर स्केल का एज कंपैरिजन टू क्या है आपका, और ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट क्या है आपका और भी ज़्यादा कम है, डिक्रीज हो रहा है ना बच्चा, उतना ज़्यादा हम उससे आपका जो वैल्यूज़ हैं उतनी ज़्यादा क्लोज होंगी आपस में, राइट। स्मॉल इज़ द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट, इट इज़ मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो बाय टेकिंग द रिपीटिव ऑब्जर्वेशंस, टेकिंग arithmetic means of the result, we can reduce least count error, so we can obviously increase the precision, right. So basically systematic errors can be removed by selecting better instruments, removing personal bias as far as possible obviously. For a given setup, these errors may be estimated to a certain extent and necessary corrections may be applied to the readings, right. Now random errors, as I told you, random errors can be minimized when the same person repeats the same observation. It is very likely that may get different readings, right. And but it can be reduced if we will take multiple readings and then we will take arithmetic mean of multiple measured value by using the same precautions, by using the same technique. If we will take multiple measured value and take mean of it, then we will get the exact true value, which is quite close to the true value otherwise, right. And we will get maximum efficiency, and this way we can reduce the error, right. But this is for random error. How we can minimize least count error? To minimize least count error, first thing is to use the instruments which are having हाई प्रिसीजन, राइट। या फिर इम्प्रूव करो अपनी जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, बाय यूजिंग गुड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स विच आर मोर एफिशिएंट, वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर, राइट। अदरवाइज द सेम वे, रिपीट द ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम एंड टेक द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. In this way the mean value would be very close to the true value of the measured quantity. Is this clear? Right, this is the most efficient way. Just like this, we will have different types of errors which we will use for our different numericals in physics. First type is absolute error. Now, as we have done previously, that to get value of error, we need difference between the true value and the measured value, right. But we must know that what is our true value of our experiment, right. So firstly, let's check absolute error. Absolute error is basically nothing but it will, just like we did previously, that errors को minimize करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है बच्चा, सबसे पहले उसका arithmetic mean निकालना है, ताकि जो भी हमें experiment value मिल सके वो हम कह सके कि ये हमारी यहाँ ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है या ये एक्यूरेट वैल्यू है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चा, एक एक्सपेरिमेंट जो भी हमारा है वी विल रिपीट सेवरल टाइम्स, राइट. वी आर रिपीटिंग अ एक्सपेरिमेंट एंड वी गॉट आवर मेजर्ड वैल्यू एज A1, right. Next time we repeat the same experiment and then we got A2, right, as our final result. Then we again repeated A3, right. Just like this we got an when we repeated for nth time, right. We got AN. Now we need to find out what is true value. We got different values for the same experiment performed, but we want to know that what is true value of this experiment, or actually quite close to true value, right. So what we will do, we will take arithmetic mean of all these values, all these measured values, right. And let AM से हमने उसे represent किया. This is true value, right. So we got AM which is equals to arithmetic mean, that is A1 plus A2 A3 plus
an डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ टाइम हमने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, लाइक nth n, right, divide by that number. So we got arithmetic mean of absolute error, right? Absolute error का हमें true value बताएगा ये arithmetic mean से. Now we can also write it as am is equals to 1 upon n and summation of I तक आप क्या करेंगे बच्चा, summation करेंगे, right? I is equals to 1 to I is equals to n तक summation होगा a का, ai का, right? We can also write it like this. Now this is our true value. We got our true value by taking arithmetic mean of all the times we have done experiments, right? We got our true value, but we need absolute error. How we will got it? We will get it by, as we know this thing, error is basically difference between true value minus में, this is true value, right? ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है, राइट, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. अब हमें पता है जब भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक बार हमें a1 मिला, सेकेंड टाइम वी गॉट a2, थर्ड टाइम वी गॉट a3 एंड नेक्स्ट टाइम वी गॉट an व्हेन वी परफॉर्म्ड इट फॉर nth टाइम, राइट. सो वी विल गेट डिफरेंट एरर्स इन डिफरेंट मेजरमेंट, राइट. सो इन फर्स्ट मेजरमेंट हाउ मच एरर इज देयर, हाउ वी विल गेट, फर्स्ट हमें एरर चेक करना है, डेल्टा a1, ये क्या है बच्चा, हमारा एरर है, राइट. इन फर्स्ट टाइम व्हेन वी परफॉर्म्ड आवर एक्सपेरिमेंट फॉर फर्स्ट टाइम, ये हमें मेजरमेंट रिजल्ट मिला था, दैट इज a1. तो उसमें कितना एरर था हम कैसे देखेंगे, जो उसका ट्रू वैल्यू है, हम बोल रहे हैं कि ये उसका ट्रू वैल्यू है, जो हमने मीन लिया जिससे हमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्वाइट क्लोज टू ट्रू वैल्यू है, वी कैन टेक इट एज अ ट्रू वैल्यू, राइट. सो सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी am मिला है am माइनस कर दो a1 से, फर्स्ट टाइम जो हमने किया. जस्ट लाइक दिस सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो उसमें कितना एरर था, दैट इज डेल्टा a2 इज इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू, दैट इज am, माइनस कर दो जो आपका उस टाइम पे जो आपको एक्सपेरिमेंट से वैल्यू मिला था, दैट इज a2, राइट. जस्ट लाइक दिस यू विल गेट डेल्टा a3 इज इक्वल्स टू am माइनस a3 एंड जस्ट लाइक दिस you will get it for nth time, delta an is equals to am, that is true value, माइनस में an जो हमें एक्सपेरिमेंट करने से nth टाइम पे जो वैल्यू मिला था, मेजर्ड वैल्यू, राइट. जस्ट लाइक दिस यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट errors present in different times, right, in measured values. You can find arithmetic mean of it, then individually you can find errors in all the measured values. So here we can say arithmetic error may be positive, may be negative, because it is just simply our difference, right? So arithmetic error can be positive और नेगेटिव ऑल्सो, राइट. कुछ भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती है जो हमारी ये अरिथमेटिक एरर है. बट इफ यू विल टेक मीन ऑफ इट, राइट, अगर आप डेल्टा a1 लिखा हुआ है, डेल्टा a1 का अगर आप मीन ले लेते हो तो वो आपका क्या हो जाता है बच्चे, आपकी जो आपका साइंस है वो आपके नहीं मिलते हैं, राइट, तो पॉजिटिव ही होगा. देन वो क्या हो जाएगा, विल ऑलवेज ए पॉजिटिव, जो उसका मीन लेंगे अगर आप तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. So now next type of our error what we use in physics is mean absolute error. Now previously we have done absolute error, right. Absolute error basically बच्चा हमने उसमें क्या किया था, हमने उसमें true value find out किया, राइट. ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, इंडिविजुअल हर क्वांटिटी में कितना एरर आया था हमारा उसको फाइंड आउट किया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट मीन ऑफ दीज एरर्स. यस, जो हमारी एरर्स आई हैं इंडिविजुअल, उनका जब हम मीन लेंगे, राइट. एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, इफ यू विल टेक मीन ऑफ इंडिविजुअल टर्म, इंडिविजुअल एरर का अगर आप मीन लेते हैं तो हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, राइट. ऑब्वियसली अगर आप मीन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उसका साइन जो है वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, राइट. सो डेल्टा ए का मीन ले रहे हैं हम, जितनी भी आपकी एरर्स आई हैं, राइट. मीन किसका ले रहे हैं हम, एब्सोल्यूट मीन ले रहे हैं किसका, एरर्स का, राइट. जितनी भी आपके इंडिविजुअल एरर्स आई हैं, नेक्स्ट स्टेप में मीन एब्सोल्यूट एरर टाइप अगर निकालने को बोलता है वो किसी का, तो कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल एरर निकालो. उसके बाद उसका क्या कर दो बच्चे, सबसे पहले जैसे डेल्टा a1 आया प्लस कर दो डेल्टा a2, बट उनका मीन लेके, यानी कि अगर नेगेटिव है कोई भी पावर, कोई भी आपकी एरर, तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव, राइट. डेल्टा a3
just like this delta a n, राइट. सो डिवाइड, nth टाइम हमने एरर्स निकाली थी तो n से डिवाइड कर दो, तभी तो क्या आएगा, मीन आएगा किसका, एब्सोल्यूट एरर्स का, राइट. एब्सोल्यूट एरर मतलब जो आपकी सब पावर्स क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव होंगी, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा, राइट. सो जस्ट लाइक दिस यू विल गेट सम वैल्यू दैट इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट. मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन किसके इक्वल आ गया आपका, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट. मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन निकालना है, एब्सोल्यूट 1/n आपका समेशन i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल्स टू n तक डेल्टा a i, राइट, विद मीन. सो दिस विल बी योर another term in which you can write this thing, right. So जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो आपके पास मेजरमेंट आया है, उसको आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, उसको हम लिख सकते हैं कि एक तो उसमें आपका ये एरर होगा, है ना, प्लस जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो, जैसे कि हम अगर एक्सपेरिमेंट में देखें तो आपका क्या है, हमने जैसे कि g इज इक्वल्स टू 9.8 वैल्यू लिया हुआ है ना. सो अगर आपका ये g इज इक्वल्स टू 10 आता है एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें क्या है बच्चा, 9.8 है प्लस उसमें क्या है 0.2 का एरर है, यही है, तभी आपका क्या बना, 10 बना g, है ना. सो आपका क्या रहेगा बच्चा, जो भी मेजरमेंट रिजल्ट आता है इससे, जो मेजरमेंट रिजल्ट है दैट इज इक्वल्स टू am, दैट इज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस, ये 9.6 भी हो सकती है वैल्यू और 10 भी हो सकती है ना. लेट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, दोबारा परफॉर्म किया तो 9.6 आ गया, तो उसमें क्या है 9.8 माइनस 0.2, यानी कि एरर क्या है, पहले प्लस 0.2 का एरर था, बाद में माइनस 0.2 का एरर आ गया. सो प्लस भी हो सकती है एरर, माइनस भी हो सकती है, डेल्टा ए मीन, राइट. सो दिस इज योर मेजर्ड रिजल्ट, जो है उसमें प्लस माइनस का आपका एरर है. और मीन एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअल एरर्स का मीन ले लीजिए, देन यू विल गेट, उनके मैग्नीट्यूड का मीन लेंगे तो आपके पास क्या आ गया बच्चा, फाइनली आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया है, राइट. So like this you can find the second type of error, that is mean absolute error. In physics these terms are used very much for numericals. Now next type of error is relative error or fractional error, right. So how to find relative error or fractional error, बच्चा जो हमने previously absolute error किया था, बेसिकली हम उसे बहुत कम यूज करते हैं. बेसिकली फिजिक्स में आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे फॉर नीट एंड JEE, जिसमें हम क्या है इन एरर्स की टॉपिक को कवर करते हैं, राइट. सो आपका एब्सोल्यूट एरर की जगह हम क्या ज़्यादातर यूज करते हैं, रिलेटिव एरर, या फिर जिसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं. As the name tells, it is basically a fraction, right. या फिर आपका क्या है, आपका रिलेटिव एरर बेसिकली क्या है, एक रेशो है. किस चीज का रेशो है, इट इज रेशो, राइट, डेल्टा ए से हम डेल्टा ए यानी कि जो आपका मेजर वैल्यू है उसका आपका हम क्या ले रहे हैं, रिलेटिव निकाल रहे हैं. रिलेटिव एरर इज रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमने सेकंड स्टेप में अभी फाइंड आउट किया है. सो दीज ऑल 4 स्टेप्स आर देयर, दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट. सो रिलेटिव एरर इज बेसिकली रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, mean absolute error to the mean value, right. mean value या फिर जिसे आप ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं, राइट, जिसे हमने am से रिप्रेजेंट किया था शुरू में फर्स्ट स्टेप में, ट्रू वैल्यू, राइट. सो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने अभी निकाला था, राइट. मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला था अभी बच्चा, उसी का हम क्या करेंगे, उसी की वैल्यू को, जैसे कि हमारे पास क्या आया था बच्चा, डेल्टा ए मीन, राइट, उसी को डिवाइड कर दो आप ट्रू वैल्यू, दैट इज am, राइट. एक्सपेरिमेंट में दिया होगा आपको क्वेश्चन में, तो उसमें पुट कीजिए एंड यू विल गेट आवर वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर, या फिर जिसे हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज, दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ एरर, दैट इज परसेंटेज एरर, राइट. परसेंटेज एरर इज फोर्थ टाइप ऑफ एरर, राइट. परसेंटेज एरर क्या होगा बच्चा, बस इसकी परसेंटेज निकाल दीजिए, दैट इज क्या करेंगे हम, इनटू में 100% कर दो, है ना. यू विल गेट परसेंटेज एरर ऑफ इट, यू विल गेट परसेंटेज एरर ऑफ इट, राइट. दैट इज डेल्टा ए इनटू में 100% इज इक्वल्स टू परसेंटेज एरर, राइट. परसेंटेज
एरर, परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा, इंटू में 100% कर देंगे, यू विल गेट योर परसेंटेज एरर वैल्यू, राइट. नाउ लेट्स परफॉर्म अवर एग्जाम्पल 2.7 in your our NCERT book to understand this whole concept of errors. So let's start our numerical by reading it. It's numerical 2.7 on page number 25 in your NCERT book, right? Let's start reading it. We measure the period of oscillation of a simple pendulum. So basically we have a simple pendulum, it's oscillating, right? And we measure its period of oscillation, right? In successive measurements, the readings turn out to be, we did a lots of experiment, we did it multiple times, we repeat the same experiment and we got readings as, let A1 से represent कर रहे हैं हम first reading को, and it is 2.63 seconds, right? Next time we observed it and we got the result as 2.56 seconds. Next is A3 is given 2.42 seconds. A4 is given, that is 2.71 seconds. A5 is given, that is 2.80 seconds. These readings are given. If we perform it multiple times, these reading came out. And calculate क्या करना है हमें? Calculate करना है first absolute error, right? Absolute error हमें find out करना है. हमने किया है अभी, कैसे find out करते हैं हम? Next हमें find out करना है relative error, right? Relative error इजी है, हम कर सकते हैं रिलेटिव एरर भी, राइट. थर्ड हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर, इजी, राइट. जो भी हमने पीछे बच्चा अपनी इस वीडियो में 4 स्टेप्स किए हैं, हम उन्हीं को सभी को अप्लाई करेंगे, राइट. फर्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन, राइट. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. क्या आएगा बच्चा? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, अरिथमेटिक मीन ले लो इन सब का, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारी ट्रू वैल्यू बन जाएगी, राइट. फर्स्ट स्टेप, टेक द अरिथमेटिक मीन एंड यू विल गेट, आपका क्या आ जाएगा, ट्रू वैल्यू आ जाएगी, AM आ जाएगा आपका, राइट. सो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइड बाय कर दो उसको जितने टाइम से, यानी कि 5 टाइम हमने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया है तो डिवाइड बाय 5, राइट. यानी कि आपके पास क्या आ गया, AM बुक में आपका कैपिटल T यानी कि टाइम वैल्यू या ट्रू वैल्यू से आपका रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट. तो AM या T किसी भी आपका उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू विल गेट, इन सबको ऐड कर दो बच्चा, राइट. इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ गया, 13.12 आ गया बच्चा, 12 सेकेंड्स, राइट. इन सबको ऐड कर दो, सिंपल कैलकुलेशन से अरिथमेटिक, डिवाइड कर दो उसको 5 से, राइट. डिवाइड कर दोगे 5 से तो आपके पास क्या आ गया बच्चा, आपके पास आएगा 2.624 सेकेंड्स, राइट. तो इसको हम 2.62 लिख सकते हैं. यू विल गेट इज इक्वल्स टू 2.62 सेकेंड्स, राइट. सो दिस इज ट्रू वैल्यू या फिर AM या फिर ट्रू वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 2.62 सेकेंड्स आ गया. फर्स्ट हमारा स्टेप क्या था, ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना. नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ फर्स्टली वी वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट, एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला हमने पहले किया था बच्चा. एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट होता था, एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए हमें ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता था, जो कि हमने कर लिया है ना. उसके बाद हम इंडिविजुअली सब टर्म में से एरर फाइंड आउट करते थे और फिर उनका क्या करते थे, हम उनको एरर फाइंड आउट करके हम क्या कर देते थे बच्चे, उनकी इंडिविजुअल जो एरर होती थी उसी को हम बोलते थे कि एब्सोल्यूट कितनी एरर है हर मेजरमेंट में, है ना. सो इंडिविजुअल एरर फाइंड आउट कर दो, जो ट्रू वैल्यू आई है उसको सब्ट्रैक्ट, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स गिवन है. वी विल गेट आवर एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअली ऑल रिजल्ट्स. So let's perform it. We got, by experiment we got T is equals to 2.62 seconds, right. इसको यहाँ पर लिख लो या फिर इसको AM भी लिख सकते हैं हम, राइट. सो AM लिख लेते हैं इसको. नाउ फाइंड आउट करो एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट में कितना है. फर्स्ट की वैल्यू बच्चे यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आपकी जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80, राइट. ये आपकी वैल्यूज आपको गिवन है. बस अब क्या करना है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर दो, फोर्थ में एंड देन फिफ्थ में भी फाइंड आउट करें. क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा A इज इक्वल्स टू
AI इज इक्वल्स टू AM माइनस में AI, राइट। सो फाइंड आउट कर दो क्या आएगा, AM कितना है 2.62 है, माइनस कर दो जो A1 था, A1 कितना गिवन है आपको 2.63 गिवन है, फर्स्ट मेजरमेंट रिजल्ट आपको 2.63 गिवन है, जस्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट करो एंड यू विल गेट योर वैल्यू, राइट, यू विल गेट योर वैल्यू। सो कितना वैल्यू आ गया आपकी वैल्यू कितना आ गया बच्चा, दैट इज 2.63, राइट। इस तरीके से आपको क्या है बच्चा, डिफरेंट वैल्यूज आपकी मिल जाएंगी, राइट, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज जस्ट लाइक दिस। इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दो अपना, क्या है आपका 2.62 माइनस 2.56, just like this 2.62 minus 2.42 that is A3, just like this AM जो आपकी ट्रू वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किसमें 2.71 सब्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट इज 2.62 माइनस 2.80 that is A5, right, you will get your different values. So here we got absolute errors of different measurement results, right? 0.06 seconds is equals to 0.20 seconds is equals to 0.09 seconds minus, and this is also 0.18 seconds plus minus आपका क्या है, इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। Now next is to find the relative error. We know this thing, relative error is basically ratio of अरिथमेटिक मीन जो एब्सोल्यूट एरर रहता है डिवाइड कर दो उसको ट्रू वैल्यू से, बट वी नो दिस थिंग बिफोर फाइंडिंग रिलेटिव एरर वी नीड टू फाइंड आउट डेल्टा ए मीन, यानी कि एब्सोल्यूट जो एरर्स आई हैं उनका मीन फाइंड आउट करने पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी कि सेकेंड स्टेप भी करना पड़ेगा आपको, राइट। एज आई टोल्ड यू दीज ऑल 4 स्टेप्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर for this question. So how can we find out mean absolute error? As I told you previously in the same video, mean absolute error कैसे find out करते हैं बच्चा, मैग्नीट्यूड ले लो इंडिविजुअली हर मीन एरर का, एब्सोल्यूट एरर का सॉरी, एंड देन उनका डिवाइड कर दो आपका n से, जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जैसे कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 टाइम आपकी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है, राइट। सो डिवाइड बाय 5 आएगा यहाँ पर, राइट। सो यू विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर। जल्दी से इसको फाइंड आउट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। मीन एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी मीन भी आप लिख सकते हो, राइट, जैसे कि बुक में आपको नोटेशन गिवन है, अदरवाइज हम क्या लिखते हैं, डेल्टा ए मीन, राइट, इज इक्वल्स टू जो इंडिविजुअल क्वांटिटी है उसका प्लस माइनस आपने नहीं देखना है, आपने उसकी क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, राइट, जस्ट क्या करो, जैसे कि 0.01 आया था हमारा एक रिजल्ट, प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, राइट, डिवाइड कर दो उसको n से, n यानी कि जितने टाइम मल्टीपल टाइम आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है, दिस टाइम इट्स 5, राइट। सो डेल्टा ए मीन किसके इक्वल आ गया, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल आ गया, दैट इज 0.54 डिवाइड बाय 5, that is equals to 0.11 सेकेंड। इट मीन्स डेल्टा ए मीन का वैल्यू आ गया आपके पास 0.11 सेकेंड्स। इंडिविजुअली क्वेश्चन में हमें ये पूछा नहीं गया था, बट वी नीड टू फाइंड आउट बिकॉज नेक्स्ट हमें पूछा था उसने रिलेटिव एरर कितना है। सो रिलेटिव एरर का हमें पता है बच्चा, बिकॉज हमारा क्या रहता है, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, हमारा था मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय जो आपका AM रहता है, दैट इज ट्रू वैल्यू रहता है, उसको डिवाइड कर दो, राइट। सो इसमें कर दो बच्चा भी 0.11 और ट्रू वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था सबसे पहले, क्या आया था वो हमारा 2.62, राइट। 2.62 से डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ इट, राइट। आपका रिलेटिव एरर कितना आ गया है, रिलेटिव एरर आपका आ जाएगा, फाइंड आउट करके मेरे को आंसर भेजना, रिलेटिव एरर कितना आया आपका, राइट। सो ये आप निकालेंगे कि रिलेटिव एरर कितना आया है, राइट। उसके बाद हम निकाल देंगे बच्चे इसका डायरेक्ट मैं आपको परसेंटेज एरर, उसके बाद उसने परसेंटेज एरर भी पूछा है क्वेश्चन में, राइट। सो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, जो भी रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा ए उसको 100 से परसेंट कर देना, आपका परसेंटेज निकाल दो उसका, राइट। सो फाइनल आंसर वुड बी 4%,
राइट। आपको इजी बना देती हूँ, इसका आंसर आप मेरे को भेजेंगे, राइट। सो क्या आएगा आपका आंसर? 4% आ गया। कमेंट सेक्शन में बताओ रिलेटिव एरर, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया, राइट। तो फाइनल आंसर इज 4%, राइट। इट्स वेरी इजी एक्चुअली। सो आपका क्या आ गया? इस तरीके से आप बहुत ही इजीली अपने 4 जो स्टेप्स हैं आपके, मैं आपको नोट्स अटैच कर रही हूँ लास्ट में, आप बहुत ही ईजिली क्या है, आप एक स्टेप को करके नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच के ईजिली अपना सारा अपना न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। एरर्स न्यूमेरिकल। सो आई एम गिविंग यू प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे आप इसको एक्सपेरिमेंट निकालोगे, प्लस नोट्स हैं आपका वीडियो के एंड में। सो थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो, राइट। जल्दी से अभी वीडियो के नीचे जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज़ उसको प्रेस कर दो, ताकि आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं आप मेरी देख पाओ, और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी आप इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करो।